अमेरिका में हमें तकरीबन 1.5 हफ्ते से ऊपर गुजर चुका है। अब फाइनली टाइम है लॉस एंजलिस जाने का और अमेरिका की एक सबसे बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन डिज्नीलैंड जाने का। आई नेवर थॉट कि ये भी एक ऐसा ड्रीम है जो मेरा पूरा होगा, बट फाइनली इट्स कमिंग ट्रू। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अमेरिका इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। जिस तरीके से हम सोचते हैं, जिस तरीके से हमने देखा होता है मूवीज़ के अंदर, वो उससे थोड़ा सा ज़्यादा हट के है। इट्स गॉट अ लॉट ऑफ नेचुरल ब्यूटी, माउंटेन्स एंड बीचेस। अब एलए जाने की तैयारी है। सबसे पहले मैं आपको अपनी राइड दिखाता हूँ। Alright, so tomorrow we are going to LA and we just came here to pick windows tinted, yes, this baby up. This is gonna be my ride from San Francisco to LA. गाड़ी तो पिक कर ली है bro, but I'll show you the proper review after I get in. Let's do it. Nice. बीच में जाओ, रोलर कोस्टर सीट पे लगी। भाई सीट नहीं। चलो भाई ड्राइविंग ऑटो पायलट जिंदगी नहीं किया करनी भी चाहिए। एसी में से चल गया ब्रो। पीछे और भाई अभी आगाज़ सफ़र हुआ ही था, मंजिल अभी दूर ही थी कि हमारी इस दिल लुभा देने वाली सवारी ने इस सफ़र में हमें पीछे छोड़ देने का फ़ैसला कर लिया था। तो नाज़रीन व सामीन, हुआ कुछ यूँ कि सफ़र के तकरीबन 2.5 घंटे होने के बाद, जब 3.5 से 4 घंटे का सफ़र बाकी था, हमारा इस गाड़ी ने साथ छोड़ दिया। वी हैड अ फ्लैट व्हील, और अमेरिका के अंदर अगर टेस्ला पे आपका फ्लैट व्हील हो जाता है तो यू हैव टू कॉल टेस्ला सपोर्ट ताकि वो आके आपके लिए टायर चेंज करें। और उसने हमारे सफ़र को वहीं पे एक जगह पे रोक दिया। All right, part of the experience, that's what it is, that's all. And you can see a smile on my face, otherwise I'm screwed. What happened, we were on our way from San Francisco to LA and it's like a 6 hours drive, and I wanted to try a Tesla out, and I ended up booking one over there, Tesla Model X. It was a 7-seater car. I was like, perfect, beautiful family car. I can put both my kids in the back seats and we can just go easily. But the shittiest thing happened to me today. So yesterday I picked up the car and it had like over 80% charge on it, and I was like, I'm gonna go ahead and make sure that it's 100% charge, because of what I read online. Teslas have 350 miles on a full charge. So I thought it's gonna take me like 1.5 charge to get to LA. But when I picked the car up and I recharged it up to 100%, it showed me that it can only drive 210 miles. That means I'll have to make 2 full 1-hour stops on 2 different charge stations. So that 6 hours journey was becoming a 8 hours journey. I was like, okay, I'll be saving a lot of money on fuel, because it's only like $15 to fully charge it, or $20 to fully charge it. And I was on my way to LA this morning. Everything was going beautiful and fine, and all of a sudden the car had a flat wheel. And the thing with Teslas is that you cannot actually go ahead and just take the wheel off. You actually have to book a roadside assistance with Teslas. I'm on the middle of a highway, and the booking company I booked it from
So far they've been a bit helpful. I'm not mad or anything. Maybe I'm just on a holiday mood. That's all. So they have actually, they're sending a tow truck which is going to pick this car up and take it back to wherever it needs to go to get fixed. And then now Unib and Saif have went back all the way to San Francisco to pick their van up because we already had cars. I just wanted to experience this shit box. अभी तक बात समझ नहीं आई कि इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी कार कंपनी है और इतना बुरा उसका निज़ाम है कि अगर आपकी गाड़ी पंक्चर हो जाती है तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि गधों की तरह बैठ के आप इंतज़ार करो कि रोड साइड असिस्टेंस वाले आके आपकी गाड़ी का पंक्चर लगाएंगे. टेस्ला, नो डाउट इट्स अ ब्यूटीफुल कार and it's very good looking car, it drives well, but the inconvenience that comes with it, सबसे पहले आपको उसको बैठ के चार्ज करना है, 1 घंटा गाड़ी के अंदर बैठ के उसको चार्ज करना है. यू नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस. मुझ में तो नहीं है भाई, मेरे से नहीं हो पाएगा. उसके बाद अगर आपकी गाड़ी को फ्लैट व्हील हो जाए तो आपको टो ट्रक के आने का इंतज़ार करना है या रोड साइड वालों को आके इंतज़ार करना है कि वो आके आपकी गाड़ी में पंक्चर लगाएं, क्योंकि एक स्पेशल टाइप का जो है वो टूल यूज़ होता है इसके टायर को निकालने के लिए. एनीवे, it's a good car to drive in the city on a very short distance. You will be able to save a lot on the fuel. But if you are someone who, like me, who travel on long roads, long trips, more than 2-3 hours out of city, interstate, do not buy a Tesla. It's not worth it. The inconvenience does not equate to the amount of money that you pay for the fuel. Anyway, after 5 hours sitting on the highway, इस टाइम पे हम LA पहुंच के सो चुके होते. Finally the help arrived. We have been saved by 2 angels. You need a ride. Yes please sir. पहले वीडियो बनेगी टेस्ला में और नहीं पियानो में. बस ये टेस्ला ने कुछ इस तरीके की यादें हमारे इस ट्रिप में शामिल की कि इवन दो 5 घंटे हमारे ज़ाया हुए, हमें हाईवे पे बैठना पड़ा. इट वाज क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग इन द मोमेंट. लेकिन जब वो 5 घंटे गुजर गए और हमने दोबारा अपनी जर्नी का आगाज़ किया और उसके बाद से अमेरिका के पूरे इस ट्रिप के ऊपर एक हमारी ये जो है कन्वर्सेशन के अंदर, हर कन्वर्सेशन के अंदर टॉपिक टेस्ला ज़रूर होता था. Bro, हर कोई मुझे याद दिलाता रहा कि हाउ स्मार्ट आई वाज ट्राइंग टू बी बाय ट्राइंग टू ब्रिंग टेस्ला इन. बट ऑनेस्टली आई वांटेड टू ट्राई इट बिकॉज जिस तरीके से मैंने देखा था मूवीज़ के अंदर या यूट्यूब के ऊपर कि टेस्ला का एक बहुत ही ज़बरदस्त इकोसिस्टम है अमेरिका के अंदर. ऑटो पायलट इज़ फैंटास्टिक. मैंने तो सोचा था ऑटो पायलट पर गाड़ी को लगाएंगे और बैक सीट करके सुकून से सोते हुए जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं. अब फाइनली LA पहुंच चुके हैं, रात गुजारेंगे और कल के नए व्लॉग में मैं आपको डिज्नीलैंड लेके चलूँगा. साइनिंग आउट, और के व्लॉग्स.